Okay, then schönen guten Abend. Assalamu alaikum. Halle zusammen. Können Sie mich hören? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है सबको? हारिस, Yeah, शफीक, sir. शहबाज, Yeah, उमर, yeah, sir. Yeah, sir. जय गुड विकेट हसीना नाले, कैसे हैं आप सब? Alhamdulillah, sir. कैसा गुजर रहा है सबका रमजान? Yeah, it was good. Very good, Alhamdulillah. जय गुड अच्छा गुजर रहा है या बस सोते सोते No, गुजर रहा है? जनवरी में तो सोते सोते ही गुजर गया था. Islam and language lab. लॉन्ग इस्लाफन, जय गुड जय गुड. So, सो सर अगर ऐसे बोले रमजान तो मेरे ख्याल से सर दया होना चाहिए ना दया रमजान बिल्कुल क्या रमजान. सो दया रमजान फलोफ्ट गुड फलोफ्ट गुड लॉफ्ट गुड, जय गुड जय गुड. लॉफ्ट फलोफ्ट गुड जय गुड, बिल्कुल लॉफ्ट गुड अच्छा गुजर रहा है. अभी अशलाफन गांसन थाक, पूरे दिन सोते रहते हैं. Okay, sehr gut. So, was haben wir in unserer letzten Vorlesung gelernt? What we have learned in our previous lesson? Was haben wir gelernt? Sag mir auf Deutsch. जर्मन में बताएं. Wer kann mir sagen? कौन बताएगा? Was haben wir gelernt? भूल गए सब या किसी Wir को याद? haben Verben mit Präpositionen gelernt. Sehr gut, Kashan, sehr gut. Wir haben Verben mit Präpositionen gesehen. हमने कुछ verbs को देखा था prepositions के साथ. Was Was sind Verben mit Präpositionen? क्या होते हैं verbs with preposition? और क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जर्मन ग्रामर का? सर इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं जिसके साथ मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसके साथ वो स्पेसिफिक प्रीपोजिशन आती है अदरवाइज if we use any other preposition then either the sentence will not make any meaning or the meaning of the sentence can change. sehr gut, हुमैर. हुमैर hat gesagt, हुमैर ने कहा कि einige Verben, यानी कुछ verbs, einige Verben kommen immer mit einer bestimmten Präposition. कुछ verbs जर्मन में ऐसे होते हैं जो अपने साथ कुछ specific prepositions को carry करते हैं. Zum Beispiel haben wir viele Verben gesehen. बहुत सारे Verbs हमने देखे. Zum Beispiel warten. Was bedeutet warten? Warten means To wait. to wait. Und vergessen Sie nicht, इस चीज को मत भूलिएगा कि warten kommt immer mit einer bestimmten Präposition. Warten भी अपने साथ एक specific preposition को carry करता है. Und das heißt So warten auf. 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 Und das heißt auf. So dieses Thema heißt Verben mit Präpositionen. इस टॉपिक को कहा जाता है Verbs with Prepositions. Und das ist ein ganz wichtiges Thema für Leute, die Prüf schreiben. वो लोग जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही important टॉपिक है. Und auch im Alltagsgespräch और Daily Life Conversation में भी beim Sprechen benutzt man meistens dieses Thema. इस टॉपिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है. Okay, so heute lernen wir kein Verben mit Präpositionen. आज verbs को prepositions के साथ नहीं पढ़ेंगे. Heute lernen wir etwas Neues. आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं. Und heute lernen wir Pronominaladverbien. Pronounce with me Pronominaladverbien. Pronominal Pronominal adverbial. Pronominaladverbien bedeutet Pronominal adverbs. क्या होते हैं pronominal adverbs? Und wann benutzt man Pronominaladverbien? Pronominal adverbs का इस्तेमाल कब किया जाता है? Gehen wir weiter. आगे चलते हैं. Was sind Pronominaladverbien? Pronominal adverbs होते क्या है? Pronominal adverbs are a special word combinations. ये कुछ special words का combination होते हैं in German that replace a preposition and a noun. जो किसी भी sentence में मौजूद preposition को और noun को replace कर देते हैं. Das wissen Sie schon, ये तो आप already जानते हैं कि Präpositionen stehen immer mit einem Nomen. जो preposition है वो हमेशा किसी न किसी noun के साथ आती है. Ohne Nomen, without noun, gibt's keine Präposition. There is no preposition without a noun. Without noun, noun के बगैर कोई preposition नहीं होती.
weil Präpositionen immer mit einem Nomen stehen, क्योंकि prepositions तो हमेशा noun के साथ ही आती हैं oder Pronomen या pronoun के साथ आती हैं. Zum Beispiel, ich warte auf den Bus. मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ. In diesem Satz, इस सेंटेंस में auf ist ein Präposition. Auf एक preposition है. Und Präpositionen kommen immer mit einem Nomen. और prepositions हमेशा अपने साथ किसको कनेक्ट करके चलती हैं? Noun को. नाउन So in diesem Satz, इस सेंटेंस में den Bus ist ein Nomen. Bus क्या है? एक noun है. Ich warte auf den Bus. मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ. In diesem Satz, Präposition kommt mit einem Nomen. अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ich warte auf dich. Ich warte auf dich. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. In diesem Satz, auf ist ein Präposition, ये एक Präposition है, und dich ist ein Pronomen, ये एक Pronoun है. So याद रखिएगा कि Präpositionen kommen immer mit einem Nomen oder Pronomen. Preposition अपने साथ हमेशा या तो कोई नाउन कैरी करती हैं या तो कोई प्रोनाउन कैरी करती हैं. Ohne Nomen oder ohne Pronomen gibt's keine Präposition. Without a noun or pronoun there is no any preposition. कोई preposition नहीं होती. फिलहाल इस चीज को तो आप याद रखें. फरीन जी, अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे पढ़ने में मजा आएगा. यहाँ तक क्लियर है सबको कि was in Präpositionen prepositions क्या होती हैं, was in Verben mit Präpositionen verbs with prepositions क्या होते हैं. alles klar, शफीक, शहबाज, यस उमर, यस जियाद, यस 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 मेरीन, सईदा फातिमा का शान, हारिस, उमर, alles यस klar? यस सर Okay, हाँ sehr gut. Dann, heute lernen wir Pronominaladverbien. आज हम पढ़ रहे हैं Pronominal Adverbs. Was sind pronominale Adverbien? Pronominal Adverbs क्या होते हैं? Was machen pronominal Adverbien? Pronominal Adverbs क्या करते हैं? Pronominal Adverbien ersetzen. Ersetzen means to replace. schreibe ich hier ganz oben में ऊपर लिख देता हूँ. इस वर्ड का इस्तेमाल मैं अक्सर करूँगा आज के लेसन में. Pronounce with me ersetzen. Okay? Pronounce with me ersetzen. एडजेक्शन Ersetzen. Yeah, that's Ersetzen means to replace. किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस कर देना, तब्दील कर देना. Pronominale Adverbien ersetzen die Präposition und das Nomen oder Pronomen. Zum Beispiel in diesem Satz, Präposition ist auf, Präposition क्या है? Auf. Und das Nomen ist Bus और Noun क्या है? Bus. So pronominale Adverbien ersetzen Präposition und das Nomen. Pronominal adverbs क्या होते हैं जो किसी भी preposition को और noun को replace कर देते हैं. Denn wir müssen keine Präposition immer mit einem Nomen wiederholen, ताकि हमें बार बार उस preposition के साथ लगे हुए noun को repeat ना करना पड़े बार बार. Zum Beispiel, ich warte auf den Bus. Auf एक preposition है और bus क्या है? Noun. Sondern kann man sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है, ich warte darauf. Ich warte darauf. Ich warte darauf का मतलब है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ. I'm waiting for it. So in diesem Satz, darauf ersetzt Präposition und das Nomen. Darauf ने क्या किया? इस auf की preposition को और इस बस को रिप्लेस कर दिया. So darauf ist ein pronominale Adverb. ये क्या है? एक pronominal adverb है. Darauf.
Wie formuliert man pronominale Adverbien und was ist er? यहाँ R क्या है? Was ist da? ये da क्या है? Das alles nennen wir heute. इन सब चीज़ों को आज बहुत डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल आपको बताने का मकसद ये है कि pronominal adverbs क्या होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में मौजूद preposition को और noun के कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें बार बार उस preposition के साथ लगे हुए noun को रिपीट ना करना पड़े। ओके हुमैर अर्जुन फाई कोई क्वेश्चन? जी सर। सर जैसे दराउफ है, यहाँ पे दराउफ का मीनिंग अगर हम दगाउफ। देखें तो दगाउफ का मीनिंग हो रहा है फॉर इट, है ना, किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है उसके अलग और भी मीनिंग्स होते हैं, मतलब ऑन के लिए भी यूज किया जाता है, समथिंग इज ऑन द टेबल, तो उसमें भी हम दगाउफ ही बोलेंगे, मतलब वो फिर बिल्कुल से वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मतलब वहाँ पे वो ऑन इट हो जाएगा फॉर इट बिल्कुल की जगह। बिल्कुल ओके सर। जहाँ जिस सिचुएशन में आउफ है उस सिचुएशन में दगाउफ आ सकता है। ओके ठीक है सर। जी सर। Ich habe meine Flasche, मेरे हाथ में इस वक्त मेरी बॉटल है हुमैर und यस सर। मैं अपनी बॉटल को टेबल के ऊपर रख रहा हूँ। Wie sagt man auf Deutsch? जर्मन में कैसे कहा जाएगा? Sag mir, wir haben schon im A2 gelernt। हम A2 में इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। Ich stelle Ich stelle meine Flasche meine Flasche auf auf den 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 Tisch. 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 Auf den Tisch, ganz einfach. Ich stelle meine Flasche auf den Tisch. Ich kann auch sagen, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ich stelle meine Flasche darauf। darauf का ये मतलब है कि auf के साथ मैंने टिश को रिपीट नहीं किया, मैंने कह दिया कि मैं अपनी बॉटल को यहाँ रख रहा हूँ। समझते जी? शफीक Yes, sir. अजनफाई कोई क्वेश्चन? यस सर। सर जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं अगर, तो उसने कहा इशवाटे ऑफ देन बुस और फिर इसने कहा इशवाटे दराउफ, तो दराउफ बेसिकली प्रपोजिशन और नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो हम या एग्जैक्टली इशवाटे आउ नहीं कह सकते, या वो भी कहना ठीक है? बिल्कुल इश वाटे आउख का मतलब है मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको कहना है कि मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ सो उसी के लिए आप दगाव का यूज करोगे। उर्दू में भी अगर आप देखो तो शफीक मैं और आप वी sprechen zusammen हम बातें कर रहे हैं उर्दू वाट इज auf den Bus। ओके आप जो है वो बस का इंतजार कर रहे हो sagst du mir आप मुझे कहोगे कि ich warte auf den Bus मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। dann sage ich मैं कहूँगा कि मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। उर्दू में भी अगर आप देखो तो मैंने उर्दू में भी बस को दोबारा रिपीट नहीं किया। तो ये जो प्रोनोमिनल एडवर्ब होते हैं ये तो उर्दू में भी होते हैं। अच्छा। आपने कहा कि मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, मैं कहूँगा मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये जो उसी है उसी ये एक उसी का। प्रोनोमिनल एडवर्ब है। मैंने बस को अपने जुमले में दोबारा रिपीट नहीं किया। ओके in gleicher Weise in derselben Way benutzt man auch pronominale Adverbien im deutschen Grammatik। बिल्कुल ऐसे ही जर्मन ग्रामर में भी इन प्रोनोमिनल एडवर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके तो बेसिकली आंसर में आपने बोलना है इशवात दराउफ, मतलब ऐसे हाँ नहीं बोल बिल्कुल देना बैठे बैठे इशवात दराउफ, मतलब पता ही नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल इसका यही मतलब है ज़ियाद कि अगर तो कोई इंसान या आप रिपीट। खुद ऑलरेडी उस नाउन को रिपीट कर चुके हो अपने सेंटेंस में हम्म। तो दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए ओके। प्रोनोमिनल एडवर्ब इसीलिए प्रोनोमिनल एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ओके मतलब कॉन्टेक्स्ट पहले से होना चाहिए नाउन और प्रपोजिशन का। बिल्कुल बिल्कुल उसको बार बार उसके रिपीटिशन से बचने के लिए ताकि बार बार उस नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसीलिए हम प्रोनोमिनल एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। खालिस क्लियर? ठीक है यहाँ सर। तक यस क्लियर है सबको? अनस हुसैन हारिस काशान सैदा फातिमा शहबाज उमैर ज़ियाद अल क्लियर? उमैर यस सर। ओके या sehr सर। gut sehr gut या सर, alles dann klar. gehen sehr wir gut। weiter in English oder auf English sagt man oft अक्सर कहा जाता है I am waiting for it aber in der deutschen Grammatik sagt man nicht। लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं कहा जाएगा आउफ। क्योंकि आपको पता है कि वेटिंग उसको जर्मन में क्या कहा जाता है? वार्टन। Warten, und warten auf. warten उसके बाद kommt Warte, आउफ आएगा। warte auf. immer warten kommt
immer mit einer bestimmten Präposition und warten हमेशा अपने साथ एक specific preposition कैरी करता है und das heißt auf और वो preposition क्या होती है auf। तो अगर आपको कहना है कि आई एम वेटिंग फॉर इट तो आप ये नहीं कहोगे ich warte für es, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो für की preposition है वो warten के साथ मैच ही नहीं करती। Warten kommt immer mit auf, warten हमेशा auf के साथ आता है। Im gleicherweise in the same way she is thinking about it। अब आप सोचो कि यार about को तो युवा कहते हैं और it को s कहा जाता है, तो Denga. हम ऐसे नहीं कह सकते कि sie denkt über es। Nein, क्योंकि thinking bedeutet denken und denken kommt immer mit an an। an Sehr gut। सो ये कॉन्सेप्ट जो इंग्लिश का है इसको जर्मन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। वी कंबाइन दा, हम दा को कंबाइन करते हैं प्लस प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन के साथ टू फॉर्म अ प्रोनोमिनल एडवर्ब इन ऑर्डर टू जनरेट अ प्रोनोमिनल एडवर्ब। गेन विया वाइटा, आगे चलते हैं। अब चाहे सर कोई भी प्रपोजिशन हो उसके आगे बस दा ऐड कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। zum Beispiel ich interessiere mich für Musik। ich interessiere mich für Musik, das wissen Sie schon, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि sich interessieren kommt immer mit für। जो sich interessieren होता है वो अपने साथ एक स्पेसिफिक preposition को कैरी करता है और das heißt für, उसको क्या कहा जाता है? für। यो so I'm interested in music, मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। ich interessiere mich für Musik। dann sagst du, आप कहोगे मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। ich interessiere mich dafür। wiederholst du kein Nomen, अब आप इस नाउन को म्यूजिक को दोबारा रिपीट नहीं करोगे। wiederholst du kein Musik, अब आप इस म्यूजिक को दोबारा अपने सेंटेंस में रिपीट नहीं करोगे, sondern बल्कि du benutzt ein pronominale Adverb, आप एक pronominal adverb का इस्तेमाल करोगे। Wie formuliert man ein pronominale Adverb, कैसे pronominal adverb formulate किया जाता है? Schreibt man einfach da, सिंपल क्या लिखा जाता है? Da plus diese gleiche Präposition और ये सेम preposition लिख दी जाती है। Was ist Präposition या preposition क्या है? Für। So das macht dafür, तो ये क्या बन जाएगा? dafür। तो ये dafür क्या करेगा? ये dafür ersetzt diese ganze Präposition und Nomenkombination। ये preposition के और noun के combination को replace कर देगा। Ich interessiere mich für Musik, मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ। Ich interessiere mich dafür, I'm interested in it, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। वैष्णव जी कॉन्सेप्ट समझ आया सबको कि प्रोनोमिनल एडवर्ब्स क्या होते हैं? Alles klar, यस Shafiq, Saida यस Fatma, सर Haris, Merin। alles या सर Sehr gut, sehr gut। आप सिर्फ एक लाइन में दोबारा रिपीट कर देते, मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी। Okay, Aisha। Okay, थैंक wer möchte wiederholen? कौन रिपीट करना चाहेगा? आयशा को कौन समझाएगा ये टॉपिक? किसके सबसे अच्छा समझ आया? जियाद, हुमैर। सर मैं समझा देता हूँ सर बहुत ओके, हुमैर। शॉर्ट में। जी तो प्रोनोमिनल एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो एक प्रीपोजिशन और उसके साथ जुड़े हुए नाउन को रिप्लेस कर देते हैं और वो नाउन कोई चीज़ होना चाहिए। तो मतलब जैसे सिंपल अगर हम बोल रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर द बस तो हम बोलते हैं इश वाटे ऑफ डेन बस, आई एम वेटिंग फॉर द बस। अगर मैं बोलूँ आई एम वेटिंग फॉर इट मतलब मैं बस को रिप्लेस बस को और उसके प्रीपोजिशन को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ इश वाटे इशवाते दगाउफ। ठीक है, तो इस सिंपल मतलब सिंपल हमें ये करना है कि हमें एक डा होता है डी ए डा को बस उस प्रीपोजिशन के आगे जोड़ देना है तो वो एक प्रोनोमिनल एडवर्ब बन जाएगा जिसमें हमें पूरा
सेंटेंस उस प्रीपोजिशन और नाउन के साथ ना बोल के हम शॉर्ट में उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक नाउन ना यूज करके हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए वी कैन यूज द प्लस द प्रीपोजिशन एसोसिएटेड विद वेरी इट। गुड. या बिल्कुल, gute Erklärung, Homer, sehr gut. Aisha, hast du verstanden? समझ आया? Yes. Okay, sehr gut. Dann gehen wir weiter und schauen wir auch ein Beispiel da. एक और example sentence को देखते हैं. So, haben Sie schon gesehen, आपने already देखा कि hier steht er mit da. Da के साथ er यानी r भी लगा हुआ है. Wann schreibt man da einfach und wann schreibt man er mit da? da के साथ r का इस्तेमाल कब किया जाएगा और वो कौन सी situations हैं जहाँ पे da को सिंपल इस्तेमाल किया जाएगा. Das schauen wir gleich. इसको अभी देखते हैं. Da is used before most prepositions. ज्यादातर prepositions के साथ da का इस्तेमाल किया जाता है. Zum Beispiel für. Für ist ein Präposition. Für एक preposition है und benutzt man da. Da का इस्तेमाल किया जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा? Dafür. Okay? Dafür. Alles klar? Aber wann benutzt man da plus er? दा के साथ आर का इस्तेमाल कब किया जाएगा? इफ द preposition starts with a vowel. अगर तो आपकी preposition किसी vowel से start होती है. Zum Beispiel a, i, e, o, u. अगर तो आपकी preposition किसी vowel से start होती है, then you add r in between da und Präposition. Zwischen da und Präposition. Zum Beispiel, Sie haben ein Präposition. आपके पास एक preposition है und das heißt auf. auf एक preposition है. अब अगर आप auf से पहले सिर्फ da लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? dauf बन जाएगा. दाउफ। बिल्कुल. darum schreibt man immer er. इसीलिए er यानी r का इस्तेमाल किया जाता है ऐसी preposition से पहले da plus er plus auf. तो ये बन जाएगा darauf. Okay, darauf. Verstehen Sie? Alles klar? Ich warte auf den Bus oder ich warte auf das Auto. Ich warte darauf. I'm waiting for it. मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ. Verstehen Sie? Alles klar? यहाँ तक समझ आया सबके कि wann schreibt man er zwischen da und Präposition. Da और preposition के दरमियान r का इस्तेमाल कब किया जाएगा? Verstehen Sie? समझ आया सबके कॉन्सेप्ट? Yes, सो yes. Okay, sehr gut. Dann, ich warte auf den Bus. मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ. Wie sagt man diese gleiche Satz mit pronominale Adverb? Pronominal Adverb से कैसे कहा जाएगा? ich warte darauf। Ich warte darauf. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. Ich warte, ich warte dich। ich warte ich warte auf auf dich. dich। auf dich। Ich warte auf dich. मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. Wie sagt man die gleiche Satz mit pronominale Adverb? इस सेंटेंस को pronominal adverb से कैसे रिप्लेस किया जाएगा? सर ये रिप्लेस कैसे हो सकता है? Darauf. मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ तो तुम तो एक, सर उसके लिए इट नहीं आ सकता ना किसी इंसान के लिए, तो हाउ कैन वी यूज? Sehr gut, Homer. Das ist ein ganz wichtiges Konzept. बहुत important Konzept है. इस चीज को याद रखिएगा कि pronominale Adverbien ersetzen nur die Dinge. जो pronominal adverbs होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को या ideas को रिप्लेस करते हैं. Nicht die Personen. लोगों को रिप्लेस नहीं किया जाता. For people. लोगों के लिए benutzt du immer eine Präposition und dann Pronomen. लोगों के लिए या इंसानों के लिए आप प्रोनोमिनल एडवर्ब्स का इस्तेमाल कभी नहीं करोगे. Sagst du immer eine Präposition und dann Pronomen für diese Person. और आप उस इंसान के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करोगे. Zum Beispiel, ich warte auf Tala. Ich warte auf Tala. मैं तला का इंतजार कर रहा हूँ. Dann benutzt du kein darauf. अब आप इस तलहा की जगह darauf का इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों? Das ist kein Ding. ये कोई चीज नहीं है. Tala ist ein Person. ये तो एक इंसान है. Und für Personen, लोगों के लिए, schreibt man immer
ein Präposition हमेशा preposition लिखी जाती है plus ein Pronomen für diese Person. उस इंसान के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है. तला इस मस्कुलिन, तला क्या है? मस्कुलिन. तो उसके साथ जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो कौन सा होगा? मस्कुलिन और अकुजाटिव होना चाहिए ना. बिल्कुल. अकुजाटिव क्यों है? अकुजाटिव वेगन आउफ, आउफ की वजह से अकुजाटिव है, ऑफ अकुजाटिव क्योंकि प्रीपोजिशन आउफ. Sehr gut. Verstehen Sie? So, ich warte auf तलहा. मैं तलहा का इंतजार कर रहा हूँ. Sagst du, आप कहोगे ich warte auf ihn. मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ. Verstehen Sie? Benutzt du kein darauf, अब आप darauf का इस्तेमाल नहीं करोगे. Alles klar? Verstehen Sie? Kashan wartet auf शफीक. काशान जो है वो शफीक का इंतजार कर रहा है. Und Humer wartet auch auf ihn. हुमैर भी उसी का इंतजार कर रहा है. जाकमान निश्त ऐसे नहीं कहा जाएगा कि हुमैर वाटेड दगाउफ, क्योंकि शफीक कोई चीज थोड़ी है. Verstehen Sie? So, pronominale Adverbien ersetzen nur die Dinge oder ihnen. Nicht die Personen. लोगों को रिप्लेस नहीं करता pronominal adverb. Alles klar? Verstehen Sie? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? शबाज, उमैर, जियाद, यस सर. अनस, हुसैन, आयशा, शबाज. ओके, सईदा, फातिमा, मेरीन, उमैर, शफीक, काशान. ओके, डन. Machen wir ein paar Beispiele से कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस को देखते हैं. Denken an haben wir schon gesehen. हमने पिछले लेसन में एक वर्ब देखा denken. Denken ist ein Verb und kommt immer mit einer bestimmten Präposition और हमेशा एक स्पेसिफिक preposition के साथ आता है और das heißt an. वो preposition क्या होती है? An. Ich denke an das Problem. Ich denke an das Problem. I'm thinking about the problem. मैं मसले के बारे में सोच रहा हूँ. Ich denke an das Problem. Wie formuliert man den gleichen Satz mit pronominale Adverb? Pronominal adverb से इसको कैसे रिप्लेस किया जाएगा? Da प्लस होगा plus er plus an. तो ये क्या हो जाएगा? Daran. Ich denke daran. Pronounce with me. Ich denke daran. Ich denke daran means I'm thinking about it. मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ. मैं मसले के बारे में सोच रहा हूँ. Ich denke an das Problem. मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. Ich denke daran. Alles klar? Verstehen Sie? Okay. Dann sich erinnern. याद है सबको? sich erinnern kommt immer mit an. ये भी an के साथ आता है. Was bedeutet sich erinnern? Sich erinnern means to remember. याद रखना. Er erinnert sich an den Urlaub. उसको vacations याद हैं. He remembers it. उसको वो याद है. Er erinnert sich daran. उसको वो याद है. So da plus er plus Präposition. Verstehen Sie? Und dann warten. Warten kommt immer mit auf. Ich warte auf den Bus. Auf ist ein Präposition. Auf क्या है? एक Präposition है. Und den Bus ist ein Nomen. Bus क्या है? एक Noun. Ich will diese Präposition und auch diese Nomen mit einem pronominale Adverb ersetzen. अब मैं इस preposition को और इसके साथ लगे हुए noun को एक pronominal adverb से replace करना चाहता हूँ. Wie sage ich? मैं कैसे कहूँगा? Ich warte darauf. Da und Präposition auf. और अगर आप देखो कि इन दोनों के दरमियान कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो आप आर का इस्तेमाल कर लो. Darauf. Ich warte darauf. I'm waiting for it. Sich freuen auf.
Was bedeutet sich freuen auf? To look forward. To look Look forward. forward. Ich freue mich auf das Konzert. Ich freue mich auf das Konzert. मैं कॉन्सर्ट के लिए मुंतजिर हूँ. I'm looking for the concert. Are you looking for the concert? क्या तुम कॉन्सर्ट के लिए मुंतजिर हो? Freust du dich auf das Konzert? हाँ, मैं उसके लिए मुंतजिर हूँ. या I'm looking for it. Ja, Ja, ich ich freue freue mich mich, darauf. mich darauf. Simple. Ich freue mich darauf. Wie formuliert man darauf? Darauf कैसे बना? Da plus Da R plus plus R plus auf. auf. Simple. So darauf ersetzt auf und das Nomen. इस darauf ने auf को और उसके साथ लगे हुए noun को रिप्लेस कर दिया. Darauf. चला भाई। हाँ ना, साजनोफाई कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल। आपने ये कंडीशन बताई थी कि डा प्लस आर की के मतलब एक सिंपल डा है जो कि मोस्ट प्रपोजिशन के साथ यूज़ होता है, आपने बताया था अभी। ठीक है। फिर आपने डा प्लस आर बताया था कि अगर वोवल से शुरू हो रहा हो तो वहाँ पे मोस्टली हम आर से कनेक्ट कर देते हैं, अगर नाउन वोवल मतलब ए ई आई ओ किसी से भी यूज़ हो रहा हो। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? हाँ ऑफ देखो, दा दा को हम कनेक्ट करते हैं अनस एक प्रेपोजिशन के साथ. ओके, प्रेपोजिशन के साथ. तो अगर तो वो प्रेपोजिशन वोवेल से स्टार्ट हो रही है, जैसे आउफ है. अब आप मुझे बताओ, दा और आउफ, अब ये प्रेपोजिशन ए से स्टार्ट हो रही है, राइट? तो अगर मैं इन जी जी दोनों को कनेक्ट कर दूंगा विदाउट आर तो ये अजीब सा लगेगा, दाउफ हो जाएगा, दाउफ. जी जी। इसीलिए हम इसमें आर के एडिशन करते हैं, दाउफ. हाँ, मैं असल में वो नोमेन समझा था, वो प्रपोजिशन के साथ कंडीशन बनेगी। नहीं नहीं नहीं, दा kommt immer mit einer Präposition. दा हमेशा प्रेपोजिशन के साथ आएगा. नाउन को तो रिप्लेस किया जा रहा है, नाउन के साथ क्यों आएगा? ओके, ठीक है। वेरी गुड. सो आप ऐसे समझ लो कि जो दा है ना, ये इटसेल्फ नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो नाउन तो चला जाएगा और ठीक दा है। प्रेपोजिशन के साथ जुड़ जाएगा. अब डिपेंड करता है कि प्रेपोजिशन क्या है. ओके, अगर तो प्रेपोजिशन फ्योर है, फ्योर, तो अब आप मुझे बताओ अनस, अब दा के साथ आर आएगा? नहीं। नहीं आएगा. ओके। गिव्स काइन वोवेल, यहाँ कोई वोवेल नहीं है. ओके, वेरी गुड. ओके। दा फ्योर. ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दा प्लस प्रेपोजिशन, इसको याद रखो आप. ओके, ठीक है वेरी सर। गुड. डन. Was machst du mit dem Messer? तुम छुरी के साथ क्या कर रहे हो? Was machst du mit dem Messer? Was ist Messer? मैसा कहा नाइफ जाता है नाइफ को या नाइफ। छुरी को. Was machst du? तुम क्या कर रहे हो? Mit dem Messer, छुरी के साथ. What are you doing with it? तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? इसके साथ. Kein Nomen. अब मैंने किसी नोमिन का इस्तेमाल नहीं किया, sondern बल्कि benutze ich was machst du damit? Warum benutze ich damit? damit का इस्तेमाल क्यों किया गया? Und was ist damit? damit क्या है यहाँ पर? damit ist ein pronominale Adverb. damit एक pronominal adverb है. da plus mit, जिसने da को और mit को ऐड कर दिया. Und das macht damit, और ये क्या बन गया damit? damit ersetzt mit und das Nomen. damit ने क्या किया? इस preposition को और उसके साथ लगे हुए noun को रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली. Was machst du mit dem Messer? Was machst du damit? Verstehen Sie? Alles klar? So, ये बहुत एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ओके, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट होने के लिए आपको इससे पहले जो हमने लेसन पढ़ा था उसमें एक्सपर्ट होना होगा. आपको ये पता होना चाहिए पहले कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन कैरी करते हैं. अगर आपको ये नहीं पता होगा
कि वार्टन कॉम्ट इम्मा mit auf, वार्टन हमेशा auf के साथ आता है, तो आप darauf का इस्तेमाल कैसे करोगे? ओके, तो कोशिश करो कि इन वर्ब्स को ध्यान में रखो आप और उनके साथ लगी हुई स्पेसिफिक prepositions को. ओके, sehr gut. Dann, ich bin mit dem Plan zufrieden. Was ist zufrieden? Zufrieden कहा जाता है, हाँ, सेटिस्फाइड। satisfied को, मुतमईन को. मैं तो प्लान के साथ मुतमईन हूँ. Ich bin mit dem Plan zufrieden. I'm happy with it और I'm satisfied with it. मैं तो इससे मुतमईन हूँ. इससे मुतमईन हूँ. Wiederhole ich kein Nomen. अब मैं nomen या plan को रिपीट नहीं करूंगा. Sondern benutze ich ein Pronominal Adverb. अब मैं एक pronominal adverb का यूज करूंगा. Ich bin damit zufrieden. Ich bin damit zufrieden means I'm happy with it. Alles klar? Verstehen Sie? Da plus mit. Damit. Ich habe keine Ahnung. सर इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो लास्ट में क्यों यूज कर रहे हैं हम? आई एम Verb. हैप्पी, सॉरी वर्ब नहीं सर, ये zufrieden का मतलब क्या होता है? Zufrieden तो एक स्टेट है, सुफ ये वर्ब नहीं है. Das ist kein Verb. सॉरी सॉरी ये सॉरी एक सर, स्टेट है, ओके जैसे होता है ना, ich bin glücklich. ओके मैं ओके, खुश हूँ. Ich bin traurig. Ich bin ठीक है सर, zufrieden. मैं satisfied या मुतमईन हूँ. Ich bin unzufrieden. Unzufrieden means I'm unsatisfied. ओके, तो ये ओके एक सर, स्टेट ओके है, ओके, सिंपल. ठीक है सर. Sehr gut. Dann आप इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो. लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो. Ich bin zufrieden zufrieden mit dem Plan. zufrieden mit dem Plan. बिल्कुल और फिर उसमें भी हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, ich bin बिल्कुल zufrieden damit ऐसे करके. बिल्कुल ऐसे इस्तेमाल किया जा. ओके सर, ओके. Damit bin ich zufrieden. damit का इस्तेमाल पहले भी किया जा सकता है. ओके, लेकिन याद रखिएगा कि verb steht immer auf Position. So verb हमेशा second position पर रहेगा. यस सर. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है. Von der Sache. Ahnung haben. Pronounce with me. Ahnung. Ahnung आनुंग haben. Ahnung. Ahnung बिना haben आइडिया, का मतलब है, Ahnung haben का मतलब है टू हैव अंदाजा आइडिया. होना. To have idea, अंदाजा होना. Ahnung haben von, किस चीज का अंदाजा. Von. Ich habe keine Ahnung. मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है. Von der Sache. Der Sache, Sache कहा जाता है मैटर को. I have no idea about the matter. मुझे इस मसले का बिल्कुल अंदाजा नहीं है. Ich habe keine Ahnung von der Sache. अगर मुझे कहना हो कि I have no idea about it, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है या कोई आइडिया नहीं है. Wie sagt man davon? Ich habe keine Ahnung davon. मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है. Ich habe keine Ahnung davon. Wie formuliert man davon? Davon कैसे formulate किया गया? Da plus von. Davon. Alles klar? Verstehen Sie? ओके, खामोशी छा गई है, शायद ऊपर से जा रहा है Sachen टॉपिक. means things भी होते हैं ना. जाखिम बिल्कुल चीज़ों को कहा जाता है. बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें भी हाँ फिजिकल नहीं होती. ओके, वो चीज़ें भी इमेजिनरी होती हैं. जैसे हम कहें, हम कहना हो कि काशान जाक्ट, काशान कहे कि मेरे पास बहुत कुछ है. आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले हैं, मैटर. तो आपको पेश आप ले जाखे. ओके, सो जाखे का मतलब है हाँ कोई भी चीज़ या मैटर. जबकि फिजिकल चीज़ें जो होती हैं, फिजिकल, उसको डिंगे कहा जाता है. ओके, डिंग का मतलब है थिंग और डिंगे का मतलब है चीज़ें. Alles klar, Kaishan? Yeah. Okay, done. Pronounce with me. Hören Hören. von. Hören von. To hear about something. किसी चीज़ से मुतालिक कुछ सुनना. Ich höre von dem Film. मैं मूवी से मुतालिक सुन रहा हूँ.
Hast du von dem Film gehört? क्या तुमने फिल्म से रिलेटेड कुछ सुना? Have you heard about the movie? तुमने मूवी के बारे में सुना? Hast du von dem Film gehört? हाँ मैंने उसके बारे में सुना. हाँ मैंने उसके बारे में सुना. Ja, ich habe davon gehört. Ich habe davon gehört. हाँ मैंने उसके बारे में सुना. Hast du davon gehört? क्या तुमने उसके बारे में सुना? या ich habe davon gehört. हाँ मैंने उसके बारे में सुना. Benutzt du oder wiederholst du kein Nomen. अब आप नाउन को रिपीट नहीं करोगे बार बार, फिल्म को रिपीट नहीं करोगे. ओके. Hast du von dem Film gehört? क्या तुमने मूवी के बारे में सुना? या ich habe davon gehört. हाँ मैंने उसके बारे में सुना. ओके. हाँ शफीक हजरफाई कोई क्वेश्चन? सर इसमें जैसे सवाल है हास्तु फॉन देम फिल्म गेहोर, तो इशाब दफॉन सिर्फ इतना कहें और गेहोट एलिमिनेट कर दें हाँ तो बिल्कुल, बाय मिसप्रेशन स्पीकिंग में किया जा सकता है. बिल्कुल कि मैंने सुना राइट इशाब बिल्कुल दफॉन। बिल्कुल. या इशाब द फोन की होट. हाँ मैंने उसके बारे में सुना. तो अगर तो कोई अपने सेंटेंस में ऑलरेडी फिल्म को यूज कर चुका है तो आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा उसको रिपीट करने की. ओके. Du musst nicht immer wiederholen. Alles klar? Okay. Dann. Ich habe etwas zu diesem Thema gelernt. I learned something about this topic. Ich habe etwas zu diesem Thema gelernt. Warum diesem Thema? Weil zu ein Dativ Dative. Präposition ist. क्योंकि zu एक Dativ Präposition है इसीलिए diesem Thema हो गया. ओके. So ich habe etwas zu diesem Thema gelernt. I have learned something about this topic. मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सीखा. I learned something about it. मैंने इससे मुतालिक कुछ सीखा. Ich habe etwas dazu gelernt. Ich habe etwas dazu gelernt. Wie formuliert man dazu? Dazu कहाँ से आया? Da plus zu. Dazu. Verstehen Sie? समझ आ रहा है सबके? Okay. Dann ich bin für diesen Plan. Ich bin für diesen Plan. I'm in favor of this plan. अगर आप किसी चीज की साइड हो या किसी चीज के फेवर में हो तो आप अक्सर कहते हो benutzt man meistens ich bin für diesen Plan. मैं इस प्लान की साइड हूँ. Oder kann man sagen, ऐसे भी कहा जा सकता है ich bin dafür. Ich bin dafür का मतलब है कि I'm in favor of it. मैं इस तरफ हूँ या मैं इसकी तरफ हूँ या मैं इस प्लान के साथ हूँ. Ich bin dafür. Warum diesen? Diesen क्यों है? Wegen für. Für की वजह से. Für ist ein Akkusativ Präposition. Der Plan होता है ना, der Plan. तो यहाँ den Plan हो गया. Diesen Plan. सर फेवर के लिए कोई वर्ड नहीं है वैसे? नहीं, अगर आप किसी चीज के फेवर में हो तो आप सिंपल कहते हो ich bin dafür. Ich bin dafür का मतलब है कि I'm in favor of it. मैं इसके फेवर में हूँ. वैसे फेवर को तो गूस्ट कहा जाता है लेकिन यूजुअली उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता. ओके. लाइक कैन आई वांट अ फेवर फ्रॉम यू, या कैन यू डू मी अ फेवर, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं. तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, कौन बताएगा? किसी को पता है? favorisieren. ये अच्छा है गाइस. ये अच्छा है, मतलब कुछ भी बना दो इंग्लिश से ना मिला ये के. गूगल बता रहा है मुझे. नहीं नहीं, उसके लिए तो हम अक्सर गिफारन या बिटन का यूज करते हैं. जैसे अगर आपको किसी को कहना हो ना कि शफीक के मुझे आपका फेवर चाहिए तो हम ज्यादातर उसमें गिफालन का यूज करते हैं. ओके. गिफालन. बिल्कुल. तो हम कहते हैं कि Ich möchte bitte gefallen oder gefallen bitten. इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके. Ich möchte dich like ich möchte dich Gefallen bitten. Alles उसमें klar? फिर ये प्रीपोजिशन नहीं आती फ्योर के नहीं नहीं, बाद? उसमें ये preposition नहीं आती. उसमें की preposition आती है. Ich möchte dich einen Gefallen bitten.
मतलब मैं आपसे आपके फेवर की रिक्वेस्ट करता हूँ छाई विषया गांचू मैं नीचे लिख देता हूँ आपके लिए कि ich möchte oder ich will dich gefallen bitten या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ich bitte einen gefallen ओके सो gefallen जो है वो ज्यादातर फेवर के लिए यूज किया जाता है ओके और bitten अगर आपको याद हो bitten याद आया bitten दाटिव bitten बिल्कुल बिटन का मतलब होता है टू मेक अ रिक्वेस्ट किसी से इल्तिजा करना und bitten kommt immer mit बिटन हमेशा के साथ आता है अगर आपको याद हो हाँ अक्सर ट्रेन स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है कि वी आर बिटन um इहा फेस्टेंडिस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वी आर बिटन इहा फेस्टेंडिस वी रिक्वेस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओके सो बिटन का मतलब है रिक्वेस्ट करना उन बिटन कॉम्ड इमा मित तो आप कहोगे इश बिटे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और इश बिटे डिश मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ आइनन गिफालन एक फेवर की ओके तो अब आप सिंपल आइनन गिफालन को रिप्लेस कर सकते हो और आप सिंपल ऐसे कह सकते हो कि इश बिटे दागुम ओके अब आप इस को और इस के साथ लगे हुए गिफालन यानी नाउन को रिप्लेस कर दोगे dann sagst du ich bitte darum लेकिन ऐसा कहा नहीं जाता ओके ich bitte einen Gefallen alles klar शफीक क्लियर है यहाँ तक यस जय सर गुड लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी चीज के फेवर में हो या किसी चीज की साइड हो और आपको कहना है कि मैं तो इस तरफ हूँ या मैं इसके साथ हूँ इस आइडिया के साथ हूँ इस प्लान के साथ हूँ और इस फेवर में हूँ तो आप कहोगे ich bin dafür means I'm in favor of it alles klar Kashan Haris Merin Umair Shahbaz Saida Fatma Ziad यस यस okay सर done Danke für deine Hilfe Danken Danken ist ein Verb ये भी एक वर्ब है und kommt immer mit für जो हमेशा für के साथ आता है so Beispiel ich danke dir मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ किस चीज के लिए für Hilfe मदद के लिए sagst du auch आप ऐसे भी कह सकते हो ich danke dir dafür dafür का मतलब है कि थैंक्स फॉर इट इसके लिए शुक्रिया danke für deine Hilfe तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया oder danke dafür means इसके लिए शुक्रिया alles klar da plus Präposition für dafür इसके लिए शुक्रिया danke dafür फरहान अनस आयशा alles klar मेरीन यस सर यहाँ तक क्लियर है सबको ओके यस सर sehr gut dann machen wir ein paar Übungen कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं मिलकर ताकि इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए so match the left sentence with the correct answer on the right ich warte auf das Paket मैं पैकेट का इंतजार कर रहा हूँ oder ich warte darauf वाट द यस ऑफ means मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ मतलब पैकेट का लेकिन wie sagt man कैसे कहा जाएगा कि मैं काशान का इंतजार कर रहा हूँ ich warte auf काशान ऑफ काश ich warte auf काशान मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ ich warte auf ihn sehr gut अब काशान को दवाव से रिप्लेस नहीं किया जाएगा काशान इज kein Ding काशान कोई चीज नहीं है काशान इज eine Person वो तो एक इंसान है और इंसानों को कभी भी
प्रोनोमिनल एडवर्ब से रिप्लेस नहीं किया जाता. प्रोनोमिनल एडवर्बियन ersetzen nur die Dinge. ये सिर्फ चीजों को रिप्लेस करते हैं, nicht die Personen, लोगों को नहीं. Ich interessiere mich für Musik. मैं म्यूजिक में इंटरेस्टेड हूँ. Ich interessiere mich dafür. मैं भी उसमें इंटरेस्टेड हूँ. Dafür. Ich denke an meinen Urlaub. मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा हूँ. Ich denke daran. Ich denke daran. मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. Ich hab von deinem Problem gehört. मैंने तुम्हारे मसले के बारे में सुना. Ich habe davon gehört. Ich hab Davon davon gehört. Ich Hast du habe davon gehört? Hast du von meinem Problem gehört? क्या तुमने मेरे मसले के बारे में सुना? Ja, ich hab davon ich gehört. habe davon Ich habe gehört. Ja, ich hab davon davon gehört. हाँ, मैंने इस बारे में सुना. gehört. सर ich habe gehört davon भी हो सकता है ना? हाँ, नहीं इस सिचुएशन में नहीं हो सकता हूँ नहीं मैं. होगा. Weil अच्छा. gehört ist, weil gehört ein Partizip 2 ist Participle und so end steht में immer am जाएगा. Ende. जी बिल्कुल. सर जी सर. नॉर्मल जी सेंटेंसेस में हो सकता है, normal sentences में या परफेक्ट के ठीक है सर. जुमलों में नहीं हो सकता. ओके, ओके सर. sehr gut. Ich habe keinen Stuhl oder Schlüssel. मेरे पास कोई चाबी नहीं है. Was mache ich? mache Ich damit. ich Was mache ich damit? can you make it oh, Was mache मैं was इसके साथ क्या करूँ या did मैं you अब क्या करूँ? Okay. okay yeah. Was sagst du zu meinem Vorschlag? Vorschlag किसे कहा जाता है? Advice. Advice. Suggestion. Suggestion. Suggestion को तो Vorschlag घाट कहा जाता है. ओके, Rat. घाट कहा Ratgeber. जाता है सजेशन को, या और Vorschlag कहा जाता है उसको. ओके. Advice को okay. हाँ, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? मतलब तुम इसके ऊपर क्या कहोगे, मतलब मेरी सजेशन पे. ओके. Dann schreiben Sie eine Antwort wie im Beispiel. So Beispiel: Interessieren Sie sich für den neuesten Kinofilm? क्या आप नई फिल्म में इंटरेस्टेड हैं? या Ich interessiere mich dafür. हाँ, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ. ओके. Dann formulieren wir दूसरा देखते हैं. Interessieren Sie sich für die Mich dafür. Popsängerin Lady Gaga? अब इसमें Dafür दफे ले- नहीं लगाना यार, दफे ऐसे नहीं करो यार. वो बंदी को तुमने चीज बना दिया. Okay, अच्छा सही 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 सही. Ich interessiere हम्म, mich für die Popsängerin Ich- Lady Gaga. ओके. Auf Lady Gaga हो जाएगा. ऑफ यह हो जाएगा ना, यह लेडी गागा. फ्यो, सॉरी. और ये फ्यो के साथ लगी हुई पूरी एक preposition, ये पूरा एक नाउन है. ओके. अब आप क्या कहोगे, कैसे कहा जाएगा? हिम आई एच एम auf हिम हो हो जाएगा. जाएगा. ऑफ हिम. काशान सही लेडी. रहेगा ना? काशान लेडी. लेडी के लिए हम कैसे लगा सकते हो आप? काशान लेडी हर के लिए हर तो होगा ना, हर के लिए अक्यूजाटिव. यह हो जाएगा. बिल्कुल, अक्यूजाटिव में हर के लिए जी Zero होता है, जबकि हिम के लिए ईहन होता है. अगर आपको याद हो, अक्यूजाटिव भूल गए तुम लोग यार. अब भूल गए भाई. A1 पढ़ना पड़ेगा. A1 में ऐड करूंगा मैं तुम लोगों को, दोबारा शुरू होने वाला है. ओके. सो ich interessiere mich für sie. ओके, ich interessiere mich für sie. फ्यो वैसे ही रहेगा अपनी जगह पे, फ्यो के साथ जी आ जाएगा. ओके. Sie, Sehr gut. Popsängerin Lady Gaga. बिल्कुल. Ergänzen Sie sich über ein verlorenes Fußballspiel. गुस्सा हो मैच हारने पे मैच हार बिल्कुल. हाँ, मैं इस पर गुस्सा हूँ. या ich ärgere mich darüber. Darüber. हाँ, मैं इस पर गुस्सा हूँ. Ergänzen Sie sich über Politiker? Ja, ich eigen sie Again. sich darüber. No, Ihan. या ज़ियाद. Political. Politica. पॉलिटिशियन को बोलते हैं ना सर. बिल्कुल. तो इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा
ईएन हिन Hale के लिए Uber. ईयन Auf के लिए Ian. ईयन Sehr gut, Uber. Sehr gut. Dann kennen Sie द उबर इहन Darüber Ian. ये अच्छा है आयशा, Darüber भी और Ian भी. नो होगा नो सॉरी द Uber Ian, okay? Uber Ian. उबर इहन सॉरी Sehr gut. Okay, können Sie sich auf Ihre Freunde verlassen? können Sie sich darauf Darauf? तो तुम्हें ये Ihre फ्रेंड है Freunde उसके ये फ्रेंड है तो सी हो जाएगा इसका भी Sehr gut. Auf Sie. können Sie sich auf Ja, Sie ja, ich Auf. kann mich auf Sie verlassen. Okay, sehr gut. Können Sie sich an das Leben in Deutschland gewöhnen? gewöhnen किसे कहा जाता है कौन बताएगा gewöhnen To लिव pass लिविंग of to ये live वो to वाला नहीं है live वाला दोबारा oh, देखो कोर्स टेस्ट पास allow कर लिया है टेस्ट पास करने में कहते हैं कि नहीं नहीं gewöhnen means to get used to of something किसी चीज की आदत लग ओके जाना ओके गिवन क्या तुम्हें जर्मनी में रहने की आदत हो गई थी नहीं या Ja oder nein? Ja, ich या kann mich daran gewöhnen oder nein, ich ich kann mich kann nicht mich daran gewöhnen. Okay? ich sehr kann gut. mich daran gewöhnen बिल्कुल आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है सिर्फ preposition के ऊपर फोकस प्रपोजिशन के करना है ऊपर ओके ऊपर फौरन ओके डन दारान सर ये लास्ट वाले में दौरान आएगा बिल्कुल अन है ना अन ओके बिल्कुल अन की वजह से दगान आएगा ओके और डन आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा कि ja ich kann mich daran gewöhnen oder ich kann mich nein ich kann mich nicht daran gewöhnen okay ओके sehr gut okay ergänzen Sie die Tabelle ganz wichtig बहुत important चीज markieren Sie das eingefügte R अब आपको ये देखना है कि कौन सी preposition में R आएगा और कौन सी preposition में R नहीं आएगा सबसे पहले तो जाग मियाँ मुझे prepositions बताएं कि welches Verb kommt mit welchem Präposition कौन सा an verb किस preposition के साथ आता है zum Beispiel uh, denken warten an auf denken an träumen von denken an an denken an sehr gut an fragen उबर sich fragen Fragen auf नहीं fragen nach okay nach fragen nach diskutieren to discuss an about something diskutieren über über wir diskutieren über dieses Thema Thema we are discussing about on this topic हम इस टॉपिक से मुताल्लिक इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं sich interessieren oh auf für या für 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 oh für für फिर sehr gut okay फिर dann Fragewort für Dinge चीजों के लिए अगर आपको चीजों के लिए कोई सवाल पूछना है mit Pronominal Adverb Pronominal Adverb से zum Beispiel warten warten का क्या मतलब है इंतजार करना und warten kommt immer mit auf warten हमेशा आपके साथ आता है तुम किसका इंतजार कर रहे हो किस चीज का इंतजार कर रहे हो डिंगे sprechen wir über Dinge फिलहाल हम डिंगे यानी चीजों से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं ओके याद रखिएगा चीजों से रिलेटेड सवाल अलग पूछा जाएगा और लोगों से रिलेटेड सवाल अलग पूछा जाएगा तो चीजों से रिलेटेड सवाल क्या होगा तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो worauf pronounce with me worauf wartest worauf du worauf schreibe ich ja wartest ganz oben मैं ऊपर लिखता हूँ आपके लिए हाँ worauf wartest du worauf wartest du का मतलब है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो dann sagst du आप मुझे कहोगे ich warte auf den Bus den Bus मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ सो किसी भी चीज से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो वो का इस्तेमाल किया जाएगा ओके और रूल सेम रहेगा आर का
आर वाला रूल सेम रहेगा प्रेपोजिशन के साथ वॉवेल वाला। ट्रॉयमन मीन्स टू ड्रीम ऑफ, ख्वाब देखना। ट्रॉयमन फॉन, wovon träumst du? wovon träumst du? तुम किससे रिलेटेड ख्वाब देख रहे हो? ओके, देन denken an, तुम किस चीज के बारे में सोच रहे हो? वो वोगान woran, वुरान woran, वोगान ओके ओके woran। वो अन नहीं हो सकता, अगर वो अन हो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अन एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो वॉवेल से शुरू होती है। ओके, इसीलिए इसके दरमियान आर आएगा, woran। Alles klar? यस Sehr gut. Dann Fragen nach. Fragen nach. वोहेन नहीं वरना Sehr gut. Wonach? वोनाक Diskutieren über. दरू नहीं वो Wo? वरुबा वरुबर वरुबा वरुबर 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 Worüber? वरुबर Worüber? वरुबा Worüber? Worüber diskutieren Sie? आप किससे मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं? किस चीज के मुतालिक डिस्कस कर रहे हैं? वाफ्यूर हो Worüber? जाएगा नीचे वाफ्यूर वोफ्यू बिल्कुल डन। वाफ्यूर Sich interessieren. वाफ्यूर Wofür? Wofür interessierst du? Wofür interessierst du dich? तुम किस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो? Ich interessiere mich für Musik. Oder ich interessiere mich dafür. Okay, alles klar? Okay, dann Fragewort für Personen. लोगों के लिए अब कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा? Auf wenn. Auf wenn. Von wem. अच्छा, auf के साथ when क्यों आया और phone के साथ wem क्यों आया? अकुजेटिव डाटिव एक्यूजेटिव और डाटिव Accusative और dative. Sehr gut. Phone एक dative preposition है, जबकि auf एक accusative preposition. Dann denken an. एंड व्हेन An wenn. An wenn. Sehr gut. An wen denkst du? तुम किसके बारे में सोच रहे हो? Ich denke an Kashan. Ich denke an dich. Ich denke an Anas. ओके, सो किसी इंसान के बारे में अगर सोचा सही जाए, सही है whom हो गया ना whom बिल्कुल बिल्कुल, टू होम। ऐसा और किसी चीज के बारे में अगर सोचा जाए ये डेंकियन तो कुबर हो सकता है यूबा नहीं, डेंकिन यूबा नहीं होगा। ओके डेंकिन कॉम्ड इमा mit an. ओके डेंकिन हमेशा अन के साथ आएगा। आप इंग्लिश से अगर उसको रिलेट करो तो आपको लगेगा कि यूबा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके ich denke बिल्कुल। Dann ich denke fragen an nach. Fußballspiel ये बोल सकता है Ich denke denke an, बिल्कुल बिल्कुल कहा जा ओके सकता है। Dann ओके nach wem. nach Nach wem. Dann über. Über व्हेन when. Sehr gut. Über wenn. मतलब किससे मुतालिक? Über wen diskutieren Sie? आप किस इंसान से मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं? Wir diskutieren über फरहान. हम फरहान से मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे कहना हो कि हम मैच से मुतालिक डिस्कशन कर रहे हैं, wir diskutieren über das Spiel. ओके, alles klar? इमेजिन करो denk कि ठीक है बोले शफीक und ज़ियाद diskutieren über etwas. शफीक और ज़ियाद किसी चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, और वो चीज़ जो है वो इंसान नहीं है, वो किसी भी टॉपिक zum Beispiel sie diskutieren über das Spiel, वो खेल को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। और अगर मुझे उन दोनों से पूछना हो कि तुम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हो, तो मैं वो युबा का इस्तेमाल करूंगा या युबा वेन का इस्तेमाल करूंगा? Worüber? वो यूबा युबा फ्रागेश में पूछूंगा, वो युबा Darüber. worüber diskutieren Sie?
आप लोग किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो। और अगर वो दोनों किसी इंसान के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो बाइशपील बॉबी के ऊपर अगर डिस्कशन हो रही है, तो अब क्या पूछा जाएगा कि Cuba यूबा when वेन। बॉब जी द किंग। बिल्कुल। alles klar, Ziad has noch कोई क्वेश्चन। मैंने कहा था कि डैंक के साथ जो आन लगता है, ये आन एंड में आना जरूरी है, डैंक आन के साथ लगता है, लाइक इस नहीं नहीं, डैंक के इस डैंक के 10 फुटबॉल स्पील आन, इस तरह होगा सेंटेंस, या इस डैंक के आन फुटबॉल स्पील ऐसे होगा? नहीं नहीं, हाँ जियाद, जो अन है इस सेंटेंस में, अन हम्म, इज kein प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है। zum ओके Beispiel zum Beispiel anrufen, anrufen, das ist ein komplettes Verb, ये कंप्लीट वर्ब है जिसमें ओके अन एक प्रीफिक्स है। ओके, ओके अन एक प्रीफिक्स है। तो ये प्रीफिक्स प्रीफिक्स गेट इमा am Ende, प्रीफिक्स एंड में जाता है। ओके अब सही आप है। कहोगे ich rufe dich an, आन कर परफेक्ट, हाँ। aber in dieser Situation, इस सिचुएशन में अन ist kein प्रीफिक्स, अन कोई प्रीफिक्स नहीं है जो वर्ब के ओके साथ। अन ist ein Präposition, ये तो एक preposition है, और ओके Präposition kommt immer nach dem Verb und vor dem Nomen। ओके preposition हमेशा वर्ब के बाद आती है और नाउन से पहले आती है। ओके तो आप कहोगे ich denke an आन, ओके सही है, das सही है। Spiel। एशपील, ओके ओके, sehr gut। अंडरस्टूड। यहाँ तक समझ आया सबको। काशान, हारिस, मेरीन, फरहान। एक आई वो नो वाली लाइन थोड़ा रिपीट सा। कर देते हैं। कौन सी फॉर द लाइन? क्वेश्चन वाले जो बोले अभी कि किससे पहले आता है किससे बाद में आता है। अन इस ein Präposition, अन एक preposition है। हाँ हम्म, आयशा, और याद रखिएगा कि Präpositionen kommen immer mit einem Nomen। जो prepositions होती हैं वो हमेशा नाउन को कैरी करती हैं, हमेशा नाउन के साथ ही है। zum Beispiel auf, इस सेंटेंस में auf क्या है? एक preposition है आयशा। और in diesem Satz, denn Bus ist ein Nomen, Bus क्या है? एक नाउन है। हम्म, तो Präpositionen stehen immer mit einem Nomen, prepositions हमेशा नाउन के साथ आती हैं। ये auf बाद में नहीं आ सकता, एंड में। वो अलग ओके सिनेरियो होता है, वो सिनेरियो होता है aufmachen वाला। aufmachen, वो जो auf है उस सिचुएशन में वो एज अ प्रीफिक्स बिहेव करता है। ओके, वो एज अ प्रीफिक्स होता है वर्ब के साथ, जो सेपरेबल वर्ब्स होते हैं। ये A1 का टॉपिक है, अलग है ये पूरा। या ओके, तो समझ आ उसको गया। उससे कंफ्यूज नहीं करें आप लोग। जैगुड, यहाँ तक समझ आया सबके? शफीक, अजनफाई, कोई क्वेश्चन? यस सर, ये वैन के रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपने बताया कि टू होम के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो ऊबर वैन जो है, या वो इसलिए यूज़ होता है कि हम पूछते हैं कि किसके किस इंसान के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल। राइट? तो अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और आप उन्हें लेट ज्वाइन करते हो, और जो दो लोग बात कर रहे थे उसमें से अब वो बात नहीं कर रहे, अब आप जाके पूछ रहे हो कि अम, आप किससे बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस फॉर्म होगा। बिल्कुल। तो वो कैसे बनेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। worüber worüber haben Sie diskutiert? Worüber haben Sie Worüber haben Sie diskutiert? Okay, diskutieren ist ein internationale Verb, international Verb है जिसका past participle diskutiert होता है। तो आप कहोगे wir haben über das Spiel diskutiert, हम खेल से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। ओके, was oder worüber haben Sie diskutiert? किससे किससे रिलेटेड, किससे मुतालिक आप डिस्कशन कर रहे थे। ओके, ओके। सो अच्छा, तो सिंपल परफेक्ट वो का जुमला यूबा, इस्तेमाल होगा। हाँ वो यूबा अगर कोई चीज़ होगी, और यूबा वैन अगर कोई इंसान होगा, बिल्कुल राइट? ऐसे ही है, बिल्कुल। तो अच्छा। आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्कशन किसी चीज़ से रिलेटेड हो रही है या किसी इंसान से रिलेटेड हो रही है। ओके, तो इन दोनों के लिए मुख्तलिफ, हाँ,
प्रोनोमिनल एडवर्ब्स होते हैं। सही है। Alles klar? यस Sehr सर gut. एक कंफ्यूजन हो रहा है मुझे Homer, सर एक ये तो whom का बताया आपने सर whose तो वो तो अलग whose वो तो कॉन्सेप्ट हो अलग है, गया वो तो वैसन है। वो whose तो तो वो तो वो तो वो हो पोजीशन गया शो ना करता है। वो तो पोजीशन वाला हो गया ना whose तो ठीक है सर पोजीशन शो करता है Homer, जैसे whose उसमें को जर्मन में कहते हैं वेसन। वैसे जी जी so जी Beispiel, हाँ, wessen Auto ist das? ये किसकी गाड़ी है? wessen Auto ist das? Das ist mein Auto, ये मेरी गाड़ी है। whose car is this? तो ये जो वेसन है, ये पोजीशन शो करने के लिए यूज किया जाता है, ये अलग है। जी सर ठीक है सर और ओके, अगर हमें पता ही नहीं है कि वो डेंगे के बारे में बात हो रही है या पर्सोन के बारे में बात हो रही है, तो हम सिंपल ये पूछ सकते हैं बस डिस्क्रिमिनेंसी सिंपल या बस नहीं हो सकता, बस कह सकते हो आप बिल्कुल, लेकिन वो युवा इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छा डिस्कशन किसी चीज़ से मुतालिक होती है और डिस्कुटिeren kommt immer mit über। ओके ओके, आप वो युवा का इस्तेमाल कर सकते हो, वो युवा। ओके ओके हारिस क्ला, यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑल इज क्लियर अनस, फरहान, महरीन, हारिस, काशान, सईदा फातिमा, शहबाज, उमर, उमर यस सर शफीक, ज़ियादा, ईशा, हारिस क्ला। ओके, dann यस haben wir auch viele Übungen, और भी काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं, aber machen Sie alle Übungen zu Hause. Okay, am Ende haben wir eine Sprechübung, End में हाँ स्पीकिंग है, und machen wir diese Sprechübung zusammen मिलकर करते हैं इस स्पीकिंग को। beenden wir heutige Vorlesung, आज के लेसन को यहाँ एंड करते हैं। आई होप कि थोड़ा बहुत टॉपिक समझ आया होगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक, und das war auch viel Übung, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना असल मकसद होता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हम नहीं कवर कर सके क्योंकि वोकैबुलरी बहुत वास्ट होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ये इम्पोर्टेंट होता है, ताकि कल को आप कोई और वर्ब देखें किसी प्रपोजिशन के साथ लिखा हुआ, तो आपको इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता हो कि हाँ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस को कैरी करते हैं, और उन सर ये व्हेन प्रपोजिशन सर ये व्हेन और व्हेम ये आपने हमें A1 या A2 में बताया था ना बिल्कुल A1 का टॉपिक है। A1 में बताया था तो मुझे वहीं से एकदम याद आ रहा है बिल्कुल आप रिवाइज कर लेना ये टॉपिक, ये जी अक्यूजाटिव के ना वे वर्ड होते हैं, तो जी इनको जी याद सर एक दफ़ा रिवाइज कर लेना याद से। शफीक अजनफ आगे कोई क्वेश्चन? यस सर। सर ये इस क्लास में और लास्ट क्लास में हमने प्रोपोजिशंस के रिलेटेड जो देखे वर्ब्स, या आज के टॉपिक में भी देखे, तो अ, बहुत सारे प्रपोजिशंस हैं जो, मतलब क्वेश्चन ये है कि हर प्रपोजिशन के साथ दा वाला इंटरसेक्शन होती है, कंबाइन होता है, या कुछ ऐसे प्रपोजिशन है जो नहीं होते कंबाइन? हाँ, ऑलमोस्ट सब होते हैं, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब होते हैं। अच्छा, और वो लाइक उनकी वर्ब लिस्ट है जिस पे वो डिपेंड करते हैं कि किन के साथ जाता है, और फिर बिल्कुल उनका। बिल्कुल। ठीक है। प्रपोजिशंस तो हमने शफीक सारी कवर कर ली, अब कोई ऐसी जी। प्रपोजिशन नहीं है जर्मन ग्रामर में जो हमने कवर ना की हो। हमने अकुजाटिव प्रपोजिशंस भी कवर की A2 में, डाटिव प्रपोजिशंस भी कवर की, और जो गैनेटिव प्रपोजिशन या गैनेटिव प्रपोजिशंस होती हैं उनको भी कवर कर लिया B1 में। तो यस। प्रपोजिशंस अब सेम रहेंगी, हाँ प्रपोजिशंस के साथ वर्ब चेंज होता रहेगा, और वर्ब और प्रपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से आपके सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता रहेगा। ओके, और अब इस कॉम्बिनेशन को आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है डेली लाइफ कन्वर्सेशन में। आपको न्यूज़पेपर पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, तो उसमें देखें कि ये प्रपोजिशन किस वर्ब के साथ यूज़ की गई है। ओके, तो ये ज़रूरी होता है, कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, अब इन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ओके, ठीक है। ओके।